Good morning, everyone. I hope you all are well. So, you all are having your SST book with you. Please open page number 33. Today, we are going to start a new chapter, that is the coastal plain and island. In this chapter, I'll tell you what are coastal plains and island and why they are important. So, children, have you seen oceans, sea, or an island? Anywhere on television or in picture? You all might have seen. So have you noticed a land beside it or a piece of land surrounded by water? Have you ever thought what do we call them? We call them coastal plains or an island. सी और ओशन के पास का जो लैंड होता है वी कॉल देम कोस्टल प्लेन्स एंड अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर वी कॉल देम एन आइलैंड. Now see how can we define them. A coast is the land beside or near the sea or the ocean. हम coast किसको बोलते हैं? एक लैंड जो सी और ओशन के पास होता है या फिर उनके बगल में होता है उनको हम कोस्ट बोलते हैं. You can also call them coastal plains or you can also call them coastline or you can also say sea shore. Now what is an island? How we'll define it? It is a piece of land surrounded by water on all sides. You can see in the picture a piece of land which is surrounded by water. जो पानी से surrounded हो, चारों तरफ से घेरे हो, उनको हम island बोलते हैं. Our coastline is stretched up to 7,500 kilometer. हमारे coastline का length आपके बुक में 7,000 दिया हुआ है, but in actually it is 7,500 किलोमीटर. इट कवर्स ऑल द इंडियन पेनिनसुला. ये हमारे इंडियन पेनिनसुला को कवर करता है. यू नो चिल्ड्रन, आवर कंट्री हैज़ मैनी ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन्स. हमारे कंट्री में बहुत सारे ब्यूटिफुल कोस्ट लाइन्स हैं लाइक योर मालाबार कोस्ट, कॉनकन कोस्ट एक्सेट्रा. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स. There are two types of coastal plains. First is your eastern coastal plains and second is your western coastal plains. You can see here Arabian Sea के पास जो coastal plain है that is your western coastal plain of India and Bay of Bengal के पास जो coastal plain है that is your eastern coastal plain of India and both the coastal plains meet at Indian Ocean. ये दोनों कहाँ आके मिलते हैं? Indian Ocean में. Now western coastal plains. You can see a red mark here. It lies between Western Ghats and the Arabian Sea. Western Ghats and Arabian Sea के बीच में जो red mark है that is your western coastal plains. So they lie between Western Ghats and the Arabian Sea. It starts from Gulf of Kutch that is Gujarat and extends up to Maharashtra, then Goa, then Karnataka, Kerala and then finally ends up at कन्याकुमारी. ये गुजरात से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका गुजरात से शुरू होता है एंड वेयर डज इट एंड एट कन्याकुमारी. नाउ दिस कोस्टल प्लेन्स आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट इज योर गुजरात और सौराष्ट्र कोस्ट, सेकेंड इज योर कोंकण कोस्ट एंड थर्ड इज योर मालाबार कोस्ट. सो रिपीट विथ मी, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? थ्री पार्ट्स में. पहला कौन सा है? गुजरात कोस्ट, सेकंड कौन सा है? कोंकण कोस्ट एंड थर्ड कौन सा है? मालाबार कोस्ट. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू गुजरात और सौराष्ट्र कोस्ट. यू कैन सी इन द मैप हियर इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. गुजरात कोस्ट जो है ये सबसे ऊपर है. इट इज अ टॉप पार्ट ऑफ योर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कच्छ एंड एंड्स अप टू गल्फ ऑफ खंबर. ये गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं एंड कहाँ पे एंड करते हैं? गल्फ ऑफ खंबर. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि व्हाट इज अ गल्फ? गल्फ किसको बोलते हैं? सी इन द मैप, गल्फ इज अ नैरो इनलेट ऑफ द सी that has large area of water and partly surrounded by land. ये एक नैरो इनलेट है सी का जिनका मैक्सिमम पार्ट वाटर से सराउंडेड होता है बट कुछ पार्ट्स लैंड से भी सराउंडेड होते हैं एज यू कैन सी इन द
map. तो what is that? That is your Gulf. The region has very fertile soil. यहाँ का जो रीजन है यहाँ का सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है, so that crops like cotton, groundnut, wheat, ज्वार, बाजरा can grow well here. यहाँ पे फर्टाइल सॉइल होने के कारण बहुत सारे क्रॉप्स लाइक कॉटन, वीट, ज्वार, बाजरा ये सब बहुत हम ग्रो कर सकते हैं. नाउ कांडला इज द मेजर पोर्ट ऑफ दिस रीजन. गुजरात कोस्ट का जो मेन पोर्ट है दैट इज योर कांडला पोर्ट. अहमदाबाद इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अहमदाबाद आपके गुजरात कोस्ट में ही आता है, सो इट इज वेरी फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री. गुजरात इज द मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ अ कंट्री. आपको पता है हमारे कंट्री का सबसे मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? दैट इज योर गुजरात. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉल्ट गुजरात कोस्ट से ही प्रोड्यूस होते हैं. नाउ कम टू कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत एंड स्ट्रेचेस अप टू गोवा. ये गल्फ ऑफ खंबत से शुरू होते हैं एंड इट्स स्ट्रेच्ड अप टू गोवा. ये गोवा तक फैले हुए हैं. It covers the state of Maharashtra, Goa and Karnataka. कोंकण कोस्ट कौन कौन से स्टेट को कवर करते हैं? महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका. दिस कोस्ट लाइन इज रॉकी, अनइवन एंड नैरो. ये जो कोंकण कोस्ट का कोस्ट लाइन है ये बहुत ही रॉकी है. ये बाकी कोस्ट लाइन्स की तरह प्लेन नहीं होते, फर्टाइल नहीं होते, ये थोड़े रॉकी होते और अनइवन होते हैं. दैट्स वाई लाइट हाउसेज आर बिल्ड हियर. जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट हाउसेस, हाई टावर्स बने होते हैं जिनको हम लाइट हाउसेस कहते हैं. दे वॉर्न द शिप्स एंड अदर बोट्स ऑफ द बिग रॉक्स दैट लाई जस्ट बीनीथ द सर्फेस ऑफ द सी. ये जो लाइट हाउसेस हैं ये बहुत ही हाई होते हैं और ये ना रॉक्स के ऊपर बने होते हैं, सो दैट दे कैन वॉर्न द शिप्स और द बोट्स. उस सी या ओशन में जो भी शिप्स या बोट्स आ रहे होंगे उनको ये वार्न कर सके कि यहाँ पे रॉक है, सो दैट दे कैन चेंज देयर रूट और दे कैन बी वार्न, दे कैन बी अवेयर. अगर उनको अवेयरनेस नहीं होगी, उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पे रॉक है, तो दे कैन मीट विद एन एक्सीडेंट. उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है. दैट्स वाई दे हेल्प देम इन वार्निंग. नाउ राइस, कोकोनट, कैश्यूनट, मैंगो, पाइनएप्पल आर सम ऑफ द क्रॉप्स एंड फ्रूट्स विच ग्रो हियर. यहाँ पे राइस, कोकोनट, कैश्यू, मैंगो, पाइनएप्पल ये सारे कुछ फ्रूट्स और क्रॉप्स हैं जो ग्रो करते हैं. ना मुंबई इज द मेन सिटी ऑफ कोंकण रीजन. कोंकण रीजन का सबसे मेन सिटी कौन सा है? मुंबई. एंड इट इज़ अ नेचुरल हार्बर ऑफ आर कंट्री. हमारे इंडिया का कोंकण कोस्ट का ये एक नेचुरल हार्बर है. एंड मुंबई पोर्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट. ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट भी है. यू नो चिल्ड्रन, मुंबई इज़ इंडियाज़ कमर्शियल कैपिटल. यस, हम लोग क्या जानते थे कि इंडिया का कैपिटल कौन सा है? दिल्ली है. बट कमर्शियल कैपिटल कौन सा है? कौन सी सिटी है? मुंबई. वाई? बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के काम होते हैं एंड इंडिया का सबसे ज़्यादा इनकम इसी प्लेस से आता है, मुंबई से ही आता है. दैट्स वाई इट इज़ अ कमर्शियल कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ रिच इन पेट्रोलियम. आप लोगों को पता था मुंबई में बहुत ज़्यादा पेट्रोल पाया जाता है. दैट्स वाई मेनी ऑयल वेल्स आर फाउंड हियर. इसलिए यहाँ पे बहुत सारे ऑयल वेल्स भी पाए जाते हैं. नाउ मालाबार कोस्ट. एज वी गो डाउन सर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सर्दर्न पार्ट्स में जैसे सबसे नीचे जाते हैं, देन व्हाट डू वी फाउंड देयर? मालाबार कोस्ट. इट रिसीव्स हेवी रेनफॉल एंड हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के साथ साथ बहुत हेवी रेनफॉल भी होता है. दैट्स वाई इट इज़ एवरग्रीन एंड हैव थिक फॉरेस्ट. इसलिए ये जो कोस्ट है एवरग्रीन होते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे थिक फॉरेस्ट भी होते हैं. दिस कोस्ट हैव मेनी लगून्स. यहाँ पे बहुत सारे लगून्स हैं. नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि व्हाट आर लगून्स? आई विल टेल यू. लगून्स आर shallow
salt water bodies called ponds and lakes separated from the main sea. Lagoons बहुत गहरे नहीं होते. It is a shallow salt water body जो लैंड की वजह से या फिर सी में कोई रॉक्स की वजह से डिवाइड हो जाते एंड देन दे फॉर्म अ पॉन्ड और अ लेक. इट इज़ ऑल्सो अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. हमारा जो मालाबार कोस्ट है ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टेट्स लाइक केरला एंड ऑल, जो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है. बहुत से लोग बाहर से आते हैं अपने वेकेशंस, अपने हॉलीडे स्पेंड करने यहाँ पे. राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ दिस प्लेस. इस रीजन का सबसे स्टेपल फूड यहाँ पे मालाबार कोस्ट में जनरली लोग क्या खाते हैं? राइस. यहाँ का स्टेपल फूड क्या है? राइस. कैश क्रॉप्स लाइक कोकोनट, बनाना एंड कैश्यू नट्स आर ग्रोन हियर. यहाँ पे कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं? कोकोनट्स, बनाना एंड कैश्यू नट्स. इनके अलावा इस रीजन में बहुत सारे स्पाइसेस भी ग्रो किए जाते हैं लाइक पेपर, जिनको हम काली मिर्च या गोलकी बोलते हैं, क्लोव्स, लौंग, जिंजर, अदरक, सिनेमम दैट इज़ योर दालचीनी. तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जो इस रीजन में ग्रो किए जाते हैं. नाउ पीपल वर्क ऑन रबर एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और फिशिंग एक्टिविटी. इस कोस्ट के जो लोग हैं जनरली वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? या तो फिर रबर एंड कॉफ़ी प्लांटेशन में या फिर एग्रीकल्चर या फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं. So this was your western coastal plain. I hope you might have understood till here. Now I'll tell you eastern coastal plains. Again you can see the red mark here. So eastern coastal plains lie between Eastern Ghats and the Bay of Bengal. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किन के बीच में लाई करते हैं? ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में. दे स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड पास थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होते हैं एंड दे पास थ्रू उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड फाइनली दे एंड अप टू कन्याकुमारी. नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार्स. जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न पार्ट होता है, यू कैन सी द पर्पल लाइन हियर, दिस इज योर नॉर्दर्न सरकार्स. एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट. एंड ये जो पिंक लाइन है, दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दिस इज योर कोरोमंडल कोस्ट. दिस रीजन is highly fertile and consists of several deltas like Mahanadi, Godavari and Krishna. ये जो एरिया है बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते डेल्टाज हैं लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, जो यहाँ के लैंड को, यहाँ के सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं. सो इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक राइस एंड शुगर. यहाँ पे राइस और शुगर केन बहुत अच्छे से ग्रो किए जाते हैं. इनके अलावा यहाँ पे cotton, coconut, jute, these are all also the crops which are grown here. Paradip, Chennai and Visakhapatnam are the important ports of this plain. Eastern coastal plains के कुछ important ports हैं ये like Paradip, Chennai and Visakhapatnam. Chennai is also one of the largest port of India. मुंबई पोर्ट की तरह चेन्नई भी हमारे कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है, बट मुंबई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लार्जेस्ट पोर्ट है एंड चेन्नई ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है. सो दिस वाज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. नाउ व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट, मेनी पोर्ट्स आर फाउंड हियर एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड्स. यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के लिए. नाउ सेकेंड, इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. यहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन्स भी हैं जिनकी वजह से यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होके आते हैं अपने हॉलीडेज़ या वेकेशंस को इंजॉय करने के लिए टू सी द नेचर्स ब्यूटी. थर्ड, लैंड इज़ फर्टाइल सो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर. यहाँ के ऑलमोस्ट सारे लैंड्स बहुत फर्टाइल होते हैं, सो यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स
fruits and spices can be grown here. As I told you earlier, crops like cotton, sugar, cane, rice, wheat, etc. Fruits like cashew nuts, pineapple, mango, etc. And spices like pepper, ginger, cinnamon and all. So this was your coastal plains. In the next chapter, I'll tell you what is an island. I'll explain you that. I hope it's clear. Thank you.